ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ستھرا پنجاب کے حوالے سے احسن اقدام۔ ضلع راجن پور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا وقاص کی اس رپورٹ میں۔ میں اپنے اداروں کے ساتھ آپ کے ڈسپوزل پہ یہاں کہیں ہمارا رول ہوگا، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور ہمارے ٹیلی فون بھی آپ کے لیے کھلے ہیں، ہاں رات کے 12 بجے ہوں گے یا دن کے 12 بجے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ہاں بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ستھرا پنجاب کے حوالے سے احسان اقدام۔ ضلع راجن پور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سردار خضر حیات خان مزاری، کانٹریکٹر ڈائیو کمپنی دانیال فاروقی سے سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جواد گوندل کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ شہروں اور دیہات میں صفائی کا یکساں نظام بنایا گیا ہے۔ صفائی کے نظام کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے گھر گھر سے کوڑا اٹھایا جائے گا۔ صفائی سے متعلق شکایت کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1139 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران ممتاز، محمد صفات اللہ، کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس قاسم گل، اسسٹنٹ کمشنر جمیل احمد، بلدیاتی اداروں کے افسران، میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا وقاص، NTN نیوز راجن پور۔ اور یہاں خبر دیں گے فیصل آباد کے تھانہ لڈیاوالا کے علاقے میں 2 سگے بھائیوں نے 4 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ ملزم ابراہیم نے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی ہی بیوی، 2 معصوم بچیوں اور اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد رضوان عاجز سے۔ جی رضوان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو یہ ایک اپنی نوعیت کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جہاں سب سے پہلے تو پولیس اسٹیشن لونڈیاوالا کے علاقے میں ابراہیم نامی ملزم نے اپنے بھائی اسماعیل کے ساتھ مل کر تہر قتل کی واردات جو ہے اسے سر انجام دیا، جس نے اپنی بیوی اور 2 معصوم بچیوں کو، جن میں سے ایک کی عمر 2 سال اور ایک کی 5 سال ہے، ان کو قتل کیا۔ اور یہ قتل کرنے کے بعد دونوں بھائی جو ہیں موقع سے فرار ہوئے۔ فرار ہونے کے بعد نواحی علاقہ ہے کوٹ حیات، وہاں پر جا کر اپنی 2 بہنوں کے اوپر فائرنگ کی، جن میں سے ایک بہن جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ دوسری جو ہے وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ملزمان جو ہے وہ ابھی تک فرار نظر آ رہے ہیں، اور جو ذرائع ہیں ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ یہ تمام جو قتل کے واقعات ہیں، جو چاروں قتل کیے گئے ہیں، وہ مبینہ طور پر خود ساختہ غیرت کے چلتے ان چاروں جو خواتین ان کو قتل کیا گیا، جن میں 2 معصوم بچیاں شامل ہیں۔ جبکہ ابھی تک اگر بات کی جائے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے تو جڑاوالا پولیس جو ہے ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک جو علاقہ وکین ہیں ان میں گہری تشویش پائی جاتی ہے، اور ایسے خطرناک ملزموں کا دندناتے پھرنا جو ہے کسی بھی مزید بڑے نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت کی جانب سے چنیوٹ میں رمضان بازاروں کا انعقاد کر دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں قیصر وینس۔ بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے چنیوٹ شہر کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے رمضان بازار کا انعقاد کر دیا گیا، جبکہ شہری جو ہے رمضان کے لیے خریداری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، یہ جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، رمضان بازار کے اندر آپ خریداری کر رہے ہیں، قیمتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ قیمتوں میں کافی کمی آئی ہے، مزید کمی چاہیے۔ چنا، دال، چاول میں کافی کمی ہے، سارا ماہ چاہیے کمی، بلکہ سارا سال چاہیے کمی۔ یہ ایک دن کے لیے نہیں کافی ہو نا، ان کو چاہیے بس مہینے اس ماہ میں خیال کریں امام۔ جی بالکل، شہری کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے جو ہے خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتوں کے اندر کمی ہے، اور لہٰذا جو ہے ان کو مزید کمی کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دیگر شہری بھی موجود ہے، جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ کہ رمضان بازار کے اندر جو ہے قیمتوں کے اندر کمی واقع ہے یا نہیں ہے؟ ہے کمی، باہر سے نا آٹا جو ہے وہ 850 روپیہ ملتا ہے، ادھر سے 780 روپیہ مل رہا ہے، اور کافی چیزوں میں کمی ہے، جیسے کہ دال ہوگی، چاول ہو گئے اور سبزی ہوگی وغیرہ میں زیادہ تر کمی باقی ہے۔ دیکھی جائے جی بالکل، شہری کو کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے لگایا جانے والا رمضان بازار اس کے قیمتوں کے اندر جو ہے واقعہ نمایاں کمی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کی مزید جو ہے خورد و نوش کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ کمی کی جائے، تاکہ شہری بآسانی سے جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھ سکے۔ جی خانے وال انصاف کا متلاشی خود سوزی کرنے والے آصف جاوید کی لاش اٹھا کر ورثہ کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ، حکومت سے کمیشن بنا کر فوری انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ عدنان رسول سے۔ جی عدنان۔ ہاں جی بالکل، یہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ عدالت میں آصف جاوید نامی شخص نے خودکشی کی تھی، خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی تھی، جو 4 روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ تو اس کا کل اچانک، یعنی کہ اس کا
जख्मों की ताब ना लाते वो इसका इंतकाल हो गया, तो उसको खानेवाल लाया गया। निजी मल्टीनेशनल कंपनी में ये शख्स मुलाजिम था जिसको बरतरफ कर दिया गया था। 9 साल तक ये अपना केस लड़ता रहा। बार बार तारीखें मिलने पर इसने लाहौर के हाता अदालत हाई कोर्ट में खुदकुशी की है। तो यहाँ पर खानेवाल में जब इसको लाया गया तो खानेवाल में इसके वर्षा ने यहाँ पर खानेवाल प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया है। इसके जो मैयत को घर से प्रेस क्लब तक एहतजाज की शक्ल में लाया गया तो उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की वर्षा ने मुतालबा किया है कि जुडिशनल कमीशन बनाया जाए ताकि इसकी इंक्वायरी हो सके और इसके जो इस केस में जो लोग हैं मुतल्लिका उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो खानेवाल पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में इसको लाया गया और यहाँ पर इसके जो है तदफीन के लिए तो पुलिस की भारी सिक्योरिटी हमरा थी। डीएसपी अब्दुल करीम सदर सर्कल भी हमरा थे, SHO सिटी भी थे, उनके साथ SHO सदर मौजूद थे इसकी तदफीन की मौजूदगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध तरक्की पसंद के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की मटियारी आमद साबिका तालुका सदर मीरन खोसो के इंतकाल पर वर्षा से ताज़ियत की। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अली फैजान। में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी मटियारी पहुंचकर साबिका तालुका सदर मीरन खोसो के इंतकाल पर उनके वर्षा से ताज़ियत की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दरिया से निकलने वाले कैनाल के खिलाफ जिस तरह पूरी सिंध सरापा एहतजाज है उसका फ़ायदा हुआ है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी मौक़िफ़ की तायद की है जिस पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन उस कैनाल के प्रपोजल पर दस्तखत की थी। आज सिंध की आवाम के सामने उस पार्टी की हुकूमत इस मंसूबे की मालिकी करने को लिए तैयार नहीं, वो कौम परस्त जमातों की कामयाबी है। हम 2 माह से अपने एहतजाजी तहरीक जारी है और जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि मुर्तज़ा जतोई ख़ानदानी शख्सियत है, पूरी दुनिया उसको अच्छी तरह से पहचानती है। ऐसे ख़ानदानी लोगों के ऊपर बकरी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के केस में फंसाया है, उनके खिलाफ ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाए। कमालिया के नवाही इलाका बस्ती मोहल्ला में मारूफ रूहानी बुजुर्ग के उर्स के मौके पर ऑल पंजाब घुड़ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया के नवाही इलाका बस्ती मोहल्ला में मारूफ रूहानी बुजुर्ग के 3 रोज़ा उर्स मेले की तकरीबात के मौके पर आल पंजाब घुड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसे देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। घुड़ डांस मुकाबले में बिहारी, मुल्तान, फैसलाबाद, जंग और साहिवाल से आए हुए घोड़ों ने हिस्सा लिया। ढोल की थाप और शहनाई की सुरीली आवाज़ पर बेहतरीन डांस करने वाले घोड़े के मालिकान को नकद इनामात भी दिए गए। हमारा सकाफती प्रोग्राम है जी, पूरे पंजाब से घोड़े आए हुए हैं, इधर सब अपने अपने जिम्मेदार घोड़े लेकर आए हुए हैं। ये शुगल मेला करते हैं, इसी तरह हमारा एक दूसरे के साथ मिलाप भी हो जाता है। ये 55 साल से पुराना ये प्रोग्राम चल रहा है। घोड़ा डांस ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ कि लोग अपनी सकाफत नाल मोहब्बत का इजहार कर सकन। पंडाल में मौजूद शायकीन का कहना था कि घुड़ डांस हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है। इस तरह के प्रोग्राम देखकर लोग ज़हनी दबाव से बाहर निकल आते हैं, इनके चेहरों पर रौनक आ जाती है। हुकूमत इस तरह के प्रोग्राम करवाने के लिए खसूसी तवज्जो दे ताकि लोग परेशानियों से छुटकारा हासिल करें और समाजी फासलों में कमी वाक़या हो सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमालिया। रुख करेंगे डोंगा बोंगा न्यू वाटर सप्लाई का मेगा मंसूबा नाकिस मटेरियल और पाइप के इस्तेमाल की वजह से करप्शन की नजर हो गया। 8 साल गुजर जाने के बावजूद न्यू वाटर सप्लाई स्कीम फाल ना हो सकी। मजीद जानते हैं वकास हफीज की इस रिपोर्ट में। डोंगा बोंगा वाटर सप्लाई स्कीम करप्शन की नजर आवाम पीने के साफ पानी से महरूम हो गई। डोंगा बोंगा की नई वाटर सप्लाई स्कीम जो MNA मियां आलम दाद लालेका ने 2016 में शुरू की थी, 8 साल गुजरने के बावजूद फाल नहीं हो रही। इस मंसूबे के लिए कमोबेश 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई थी। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और बदउनवानी के बायस ये मंसूबा आवाम के लिए बेफ़ायदा साबित हो रहा है। 2016 में MNA मियां आलम दाद लालेका साहब की एक खुसूसी ग्रांट थी वाटर सप्लाई की डोंगा बोंगा के लिए, जिसमें करप्शन का बाजार गर्म हो गया। यहाँ पर ठेकेदार और उसके प्यारों ने और चहेतों ने करोड़ों रुपए करप्शन की नज़र करके 2 नंबर मटीरियल भी क्या बल्कि 4 नंबर मटीरियल लगाया है। बालपुर से जो कि एक टीम भी आई थी जो कि इन पाइपों को रिजेक्ट कर गई थी, जो कि असल कंपनी के नहीं है, जिसकी वजह से 2 नंबर पाइपों की वजह से जगह जगह से हमारी पाइपें फट रही हैं। शहर में आकड़ा नहर से लेके डूंगा बुंगा वाटर सप्लाई तक
सारा काम ही 2 नंबर हुआ है, तमाम वाल 2 नंबर लगे हैं और खुओं की जो पोजीशन है उसमें मटेरियल में भी अंदर से उनको प्लास्टर नहीं किया गया है, बाहर से किया गया है दिखावे के लिए और सारा का सारा मटेरियल 2 नंबर इस्तेमाल हुआ है। मंसूबे में इस्तेमाल किए गए पाइप इंतहाई कमज़ोर जो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते, जिसकी वजह से बार बार फट जाते हैं। आवाम का कहना है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जिम्मेदारान और ठेकेदारान ने मिली भगत करके गैर मियारी सामान इस्तेमाल किया। इस अहम मंसूबे को करप्शन की नज़र कर दिया है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल और जामे तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आवाम को साफ पानी की सहूलत फराहम। डूंगा बूंगा के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इस बदउनवानी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि डूंगा बूंगा के शहरियों को इनका हक दिया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ वकास हफीज, डूंगा बूंगा। अपडेट करेंगे डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का शहर के रमजान सहूलत बाजार का अचानक दौरा, अशिया खुरनोश की कीमतों, मयार और समेत दीगर इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी सलीम की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का शहर के रमज़ान सहूलत बाजार का अचानक दौरा, अशिया खुरनोश की कीमतों, म्यार और दस्तयाबी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मॉडल बाजार में कायम रमज़ान सहूलत बाजार का अचानक दौरा करके वहां पर लगाए गए स्टॉल्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों, म्यार, दस्तयाबी और किए गए दीगर इंतजामात व सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और हदायत जारी की कि आवाम को मेयारी और सस्ती अशिया की फ्राहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर आवाम को रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में आवाम को मेयारी और सस्ती अशिया की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए सख्त मॉनिटरिंग जारी है। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरत की खरीदो फरोख्त ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला में आवाम को सस्ती चीनी की फ्राहमी के लिए 10 शुगर सेल पॉइंट्स कायम किए गए। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में सब्जियां, फ्रूट, दालें, बेसन, चिकन मार्केट के मुकाबले में सस्ते नरखों पर फ्राहम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी सलीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ कसूर। रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां प्रेस क्लब नजरियाती ग्रुप के ज़ेर इंतजाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड और इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं हाजी उमर हसन की रिपोर्ट। आरिफ वाला टीम में DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदर ने बतौर मेहमान खसूसी और मुकामी रुकन कौमी असम्बली राणा इरादत शरीफ ने बतौर मेहमान आज़ाद शिरकत की। नजरियाती ग्रुप के कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद इकबाल, सदर मलक नदीम अख्तर और काशिफ इबाद ने दीगर साथियों के हमरा मेहमानों की आमद पर इनका इस्तकबाल किया। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन शादा नूरीन, DSP चौधरी इनामुल हक, सदर बार शकील आलम ईवान, एडवोकेट साबक चेयरमैन बल्दिया सैयद मोहम्मद आदि ज़ैदी और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदर, MNA राणा इरादत शरीफ, SP इन्वेस्टिगेशन शादा नूरीन, अशरफ सलामत, एडवोकेट मुकामी साफी मोहम्मद इनाम भट्ट और काशिफ इबाद ने खिताब किया। राणा इरादत शरीफ और DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदर ने शानदार तकरीब के इनकाद पर मुंतज़ामीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुआशरे के मसाइल की निशानदही मीडिया के जरिए होती है। पुलिस और मीडिया का चोली दामन का साथ है और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। तकरीब में अंजमन ताजरान गल्ला मंडी से चौधरी मुनव्वर इकबाल, चौधरी मोहम्मदीन राणा, नसरुल्ला नासर, डॉक्टर रऊफ अलवी, MS तहसील हेडक्वार्टर आरिफ वाला, डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्पेंसर जुबैर हुसैन, अंजमन ताजरान सब्जी मंडी से चौधरी अलियास सलीम और चौधरी आसफ सलीम ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबा जात, पुलिस, सेहत, सहाफत और तजारत में नुमाया कारकर्दगी पर तकरीब में मौजूद अफराद को शील्ड से भी नवाजा गया। तकरीब में स्टेज सेक्रेटरी के फरायद सर तौसीफ नियाज ने सर अंजाम देते हुए महफल की रौनक को चार चांद लगा दिए। प्रोग्राम के मुंतज़मीन जुल्फ़कार रहमानी, चौधरी मोहम्मद इकबाल, मलक नदीम अख्तर, काशिफ इबाद, जफर हुसैन भट्टी, मिर्जा मोहम्मद असलम, साजिद मुनीर, अली रजा और दीगर ने मेहमानों की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ हाजी उमर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला।
गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी रहने वाली बर्फबारी और बारिश के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने गलियात का रुख कर लिया। सयाह हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त गलियात से हमारे नुमाइंदे सरदार नियाज के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम खड़ा हूँ याद के खूबसूरत मुकाम छांगला गली पे, जहाँ आज स्याहों से खचा खच भरा हुआ है। ये जो स्याह कल और परसों की बर्फबारी के बाद आज जो स्याह हैं, इस टाइम गलियात पूरा स्याहों से भर चुका है और पूरे अर्थ से आने वाले स्याहों की ये खुशी का मुकाम है। बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम। कुछ मेरे भाई मेरे पास खड़े हुए हैं, पूछ रहे थे उनसे, जी भाई कहाँ से हैं? जी हम लाहौर से आए हैं। कैसा लगा यहाँ का मौसम? मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। हम तो फुल इंजॉय कर रहे हैं। कल से हम आए हुए हैं लाहौर से। कल तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई ना इधर। आप कल भी इधर थे? हाँ कल इधर लाइव देखिए बर्फबारी? हाँ जी लाइव देखिए हमने, शाम को भी देखी है। हम तो फंसे रहे हैं काफ़ी देर इधर। सियाहों के लिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से थ्रू आउट पाकिस्तान यहाँ आ रहे हैं, तो स्नोफॉल हो गई है, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। GDA वाले, रेस्क्यू वाले, मैं ख़ुद असिस्टेंट कमिश्नर गलियात शमीमुल्ला 24 घंटे हम अवेलेबल है और कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह टूरिस्ट आ जाए तो हम अवेलेबल है और कोई इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। रोड क्लियर है। बर्फबारी ज़्यादा हो गई थी तो वो रोड जो ब्लॉक हो गई थी, तो इंतज़ामिया ने काफ़ी हमारी मदद की है। जी जैसा कि ये भाई ने बताया कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है बहुत आला है और रात को तकरीबन हम फंस गए थे तो इंतज़ामिया ने हमें निकाला है। जी दूसरी जानिब दीपालपुर तहसील के इलाके हुज्जा शाह मुकीम में खेलता पंजाब प्रोग्राम का अमली जामा पहनाने के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है और इस दौरान रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद भट्टी। दीपालपुर तहसील के कस्बा हुजरा शाह मुकीम में तलीमी इदारे के ज़ेरे एहतमाम दूसरे सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी, कबड्डी और मुख्तलिफ दौड़ों के टाइगर, ईगल और कलंदर के दरमियान कांटेदार मुकाबले मुनक्किद हुए। मेहमान खुसूसी चौधरी खालिद महमूद, एडवोकेट मियां मोहम्मद असलम चुज और प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल्ला ने खिताबात करते हुए कहा, और ये एक बहुत ही सेहतमंदाना एक्टिविटी, एक सरगर्मी है जो कि इसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में। गर्ल्स के मुकाबले पहले हो गए हैं और अभी बॉयज़ की गेम्स इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल है। तो ILM कॉलेज जो शख्सियत साजी का दूसरा पहलू है। स्टूडेंट खिलाड़ियों ने कोचेस प्रोफेसर असद बिलाल, प्रोफेसर अली अकबर और प्रोफेसर नवीद की ज़ेरे निगरानी भरपूर खेल पेश किया। खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गयीं। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका व दीगर शहरियों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। खबर देंगे तहसील समड़ियाल में अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम का आगाज कर दिया है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इरफान। जी बताता चलूं, तहसील समड़ियाल में अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल गुलाम फातमा बंदियाल ने चौधरी अरशद जवैद वड़ौच सूबाई असम्बली पंजाब के हमरा AC ऑफिस समड़ियाल में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम की है। असिस्टेंट कमिश्नर ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि समड़ियाल में मुस्तहिक अफराद में माइनॉरिटी कार्ड अक़लियती बरादरी को फराहम किए जाएंगे, जबकि माइनॉरिटी कार्ड के जरिए हर 3 माह बाद 10,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब अक़लियती बरादरी के हकूक़ के बारे में खुसूसी इक़दामात पर अमल पैरा है। समड़ियाल में पहले मरहला में 376 माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ियाल। जहानिया इंतजामिया की लापरवाही के बायस बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगा। शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। मजीद बता रहे हैं चौधरी इमरान अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया में, जहाँ वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब का दफ्तर तो कायम किया गया और साहब इक़्तिदार के हाथों इसका इफ्तिताह भी किया गया और मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक काफ़ी लोगों को बर्ता भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जहानिया में कहीं सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत सफाई का बंदोबस्त कर रहे हैं और बिल्कुल ये लाखों रुपए का दफ्तर कायम होने के बावजूद बिल्कुल दफ्तर के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ बिल्कुल कचरे के ढेर और बिल्कुल दफ्तर के सामने लगे हुए हैं, उसके बावजूद कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है और कोई इसका देखने वाला नहीं है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, निजी कंपनी को ठेके दिए गए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सख्त अहकामात थे कि
किसी भी शहर में, शहर की गलियों में और देहातों में कोई भी कूड़ा क्रिकेट नज़र ना आए, मगर जहानिया शहर में ये मुहिम जो है वो फ्लॉप होकर रह गई है। आप बाईपास चले जाएं, ज़फरुल्लाह चौक चले जाएं, आप हाउसिंग स्कीम चले जाएं, कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, बदबू तोफ़न से यहाँ पर जो है खड़ा होना और चलना भी माहौल हो गया है। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि जाने का किसी इलाके में कभी विज़िट करें, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है इस पर नोटिस लेके फ़ाल किया जाए ताकि शहरियों को इस ताफ़न और बदबू से निजात मिल सके। जी, शोरकोट में खेलता पंजाब गेम्स के तहत स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में दूसरे रोज भी स्पोर्ट्स का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट में खेलता पंजाब गेम्स के तहत शोरकोट जिम्नाजियम में दूसरे रोज भी स्पोर्ट्स का सिलसिला जारी है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल और दीगर गेम खेली जा रही हैं। इस मौके पर तहसील स्पोर्ट्स इंचार्ज हबीब डक्कू, प्रिंसिपल VTI खादिम हुसैन, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल आसिफ दिराज, सदर प्रेस क्लब राना शहर महमूद, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब चौधरी सुहेल रात, शेख जुल्फ़कार अली, राना शबीर के अलावा मुख्तलिफ स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले से स्पोर्ट्स इंचार्ज हबीब डक्कू का कहना था कि गेम नौजवान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और गर्ल्स के लिए खेलों का इनका शोरकोट में पहली बार किया गया है। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़ शोरकोट। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सिलावाली में रमज़ान सहूलत बाजार की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली ने रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा भी किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ केलियार। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सिलावाली में भी रमज़ान सहूलत बाज़ार जो है वो लगाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली जमशेद इकबाल ने रमज़ान सहूलत बाज़ार का दौरा किया और रमज़ान सहूलत बाज़ार के इंतजाम, दस्तियाब एशिया खुर्दनोश के मेयार और कीमतों का जायज़ा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद इकबाल ने कहा कि रमज़ान मुबारक में एशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा या मसनूई किल्लत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गिरा फरोशी, नाप तोल में कमी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान मुबारक में अशिया ज़रूरिया की कीमतों की कड़ी मॉनिटरिंग और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान सहूलत बाज़ार में सफाई सुथराई और मेयारी अशिया की दस्तियाबी जो है वो यकीनी बनाया जाए और रमज़ान मुबारक में अशिया ज़रूरिया की वाफिर मिकदार में दस्तियाबी के लिए इक़दाम किए जाए। जी, खबर देंगे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला तोंसर शरीफ के मुस्तहिक अफराद में 10,000 रुपये के चेक तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल शहजाद। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत रकूम की तफसील का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज पोस्ट ऑफिस तौसा शरीफ मोहम्मद अली खिदरान साहब। इस सवाल से उससे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, तौसा जोन में कितने कार्ड आ चुके हैं और कितने मजीद आएंगे? तौसा सब डिवीजन में तकरीबन जो है ना 3,000 के लगभग आ गए हैं कल से और मुतवक्के जो है तकरीबन मजीद 25 से 27,000 आने हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के प्रोग्राम रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 10,000 के पे आर्डर्स ये बेनिफिशरीज तक जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है उनकी तकसीम का अमल कल से शुरू हो गया है। 3,000 के करीब हमने तकसीम कर दी है। मजीद 25 से 27,000 इंशाअल्लाह आने हैं जो कि रमज़ान के पहले अशरे में हम इसकी तकसीम मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। हमारा जो अमला है उनकी ड्यूटियाँ हमने लगाई हुई हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। छुट्टियाँ इतवार की भी मनसूख हैं, वो घर घर जाके उनको और ये जो चेक है 10,000 का पे आर्डर उनको तकसीम कर रहे हैं। रमज़ान से पहले अशरे में ही हम इंशाअल्लाह इसकी तकसीम को मुकम्मल कर लेंगे। जी, आपने सुना मोहम्मद अली साहब का कहना है कि हमारे जो पोस्ट मैन है वो घर घर जाकर ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दी गई रकूम के जो चेक है ये घर घर जाकर उनको फराहम कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। जी, रुख करेंगे हाफिजाबाद का, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से रमज़ान मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी का अमल जारी है। रमज़ान सहूलत बाजार में 19 अक़साम की अशिया आम मार्केट के निस्बत सस्ते दामों में दस्तियाब हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से माह रमज़ान की आमद से पहले ही मॉडल बाजार में सहूलत बाजार जो है रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया, जहाँ पे जो हाफिजाबाद के शहरियों और दीगर तमाम शहरियों के लिए सस्ती चीज़ें जो वहाँ पे यहाँ पे दस्तियाब होंगी। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इन्हें मार्केट से कितना सस्ता यहाँ पे मिल रहा है और ये वज़ीर आला पंजाब से क्या आप कहना चाहते हैं। जी भाई, आप यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपको ये बाजार से सस्ता मिला? जी, इस मौके पे हम सीएम मरियम नवाज साहिबा के बेहद मशहूर हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा ये रिलीफ दिया है। ये हम चाहते हैं कि हर जो आता है ना रमज़ान बाजार इसी तरह के रिलीफ होने चाहिए। इसमें घी, करियाना, हर चीज़ में सब्सिडी है। बाजार से सब्जी लेने आए हैं, इसमें भी अच्छी खासी सब्सिडी मिली है। शुक्रिया जी। मेरे साथ दूसरे भी एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो माल बहुत अच्छा और बहुत सस्ता मिल रहा है, बाजार से बहुत बाहर आता है
बहुत अच्छा ये माल है जी। आपने जाना जो शहरियों के ज़बानी के यहाँ पे मॉडल बाज़ार रमज़ान बाज़ार में सब्ज़ी और घी आटा चीनी में सब्सिडी है, बाज़ार से बाहर आए 10 से 15 रुपए कम रेट पे मिल रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दुआएं दी जी। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया डेरा गाजी खान का तजावुजात के खिलाफ बदस्तूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुरानी सब्जी मंडी को भी क्लियर करवा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक खोसा से। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान और मेरे बैक साइड पे किसी ज़माने में यहाँ पे एक सब्ज़ मंडी थी और जिसको मुतवातिल जगह पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शिफ्ट कर दिया गया। आज मैं आपको मनाज़िर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे इसको क्लियर करा दिया गया और ये दुकानदार जो भी है इनको मुतवातिल जगह भी दे दिया गया और एंटी इंक्रोचमेंट शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे। इन दुकानदारों को क्या अल्टीमेटम टाइम दिया गया था, नहीं इनको कोई मुतवातिल जगह भी प्रोवाइड किया गया या नहीं किया गया? सर क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सर जी, इनको अपना कमिश्नर साहब और अपने ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक इन लीगल मंडी थी, इनको हमने 4 दिन पहले इनको नोटिस दिया और ऐलान करवाए। 12 इनको तंबीह की है कि अपनी मंडी मॉडल बाज़ार में शिफ्ट कर दें और मॉडल बाज़ार में अपना सामान लगाएं और वहाँ पर कोई फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक वहाँ के मंडी अपनी शिफ्ट करें और इन लीगल मंडी को यहाँ छोड़ दें। और यहाँ जो थड़े वगैरह थे, दुकानें वगैरह थी, उनको हमने 12 उनको तंबीह किया, उनको ऐलान कराया और नोटिस दिया है कि आप यहाँ से चले जाएँ। जी बिल्कुल, 12 मरतबा उनको अल्टीमेटम जारी किया गया। उनको कहा गया कि यहाँ ये जगह छोड़ दें, सरकारी जगह है, मुतवातिल मंडी यहाँ नहीं है। और शाहिद साहब का ये भी कहना है कि मॉडल बाज़ार में मुतवातिल जगह पंजाब गवर्नमेंट मोहतरमा मरियम नवाज़ के अहकामात के मुताबिक और ज़िले इंतज़ामिया के हुक्म के तहत मॉडल बाज़ार में जगह प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे बिजली भी है, जगह भी और फ्री ऑफ कास्ट, फ्री, कोई किराया कोई रेंट नहीं है और ये जगह जो है बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। और दुकानदार भी हमारे अगर बात करें तो बैक साइड पर किसी ज़माने में सैनमा था, वहाँ पे भी शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ दुकानदार यहाँ पे मॉडल बाज़ार में, जो कि सहूलत बाज़ार पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नया नाम दिया गया, वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ, ये जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पे तमाम खाने पीने की अशिया, फूड, तमाम अशिया वहाँ पे गोश्त, दालें, चीनी, चावल मौजूद हैं। और डेरा गाजी खान के दूर दराज के सिटी, आउट ऑफ सिटी के जो शहरी हैं वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।